Hello students, I hope you all are fine and doing well in your studies and you are fit and healthy, right? So in the previous class we have discussed about one of the animal fiber, that is wool, right? How, from where it is obtained, how it has been processed, and finally how it has been converted into a woolen fabric. Today we will be discussing about the another animal fiber, that is silk, right? So silk, we know it is obtained from silkworm, right? It is obtained from silkworm. So silkworm को क्या करेंगे, उनको taking care, growing them in order to obtain the silk. So that whole process is called rearing, right? Rearing of sheep भी हमने देखा था in the previous lecture, right? Where we take care of the sheep, we grow them so that we can get the wool, right? Similarly, what we can say, rearing of silkworm, right? Rearing of silkworm to obtain silk is called sericulture. What is sericulture? हमको क्या चाहिए, सिल्क चाहिए. तो for that we take care, we grow them, we take care, we provide proper conditions so that it can grow properly and can produce silk, right? So that whole process is called sericulture, right? Now before moving how do we obtain silk, it is necessary for us to understand the life history of silkworm, right, or silk moth. We'll now discuss about the life history of silk moth, right? So silk moth मतलब क्या होगा, जो मच्छर टाइप आएगा ना, जो सिल्क, राइट, जो बटरफ्लाई यू कैन से, दैट इज सिल्क मोथ, राइट? बटरफ्लाई टाइप में जो सिल्क वॉर्म फाइनली विल डेवलप विल गेट डेवलप विंग्स, राइट, इन द एडल्ट स्टेज. सो उसको बोलेंगे सिल्क मोथ. सो फीमेल सिल्क मोथ, व्हाट डज इट डू? फीमेल silk moth, what does it do? It lays egg. What does it lays? It lays eggs, hundreds of egg it lays at a time. एक टाइम में hundreds of egg it lays. Okay, when the egg hatches मतलब break हो जाएगी, right? वो जब certain days के बाद क्या हो जाएगा, वो egg टूट जाएंगे. When the egg hatches, okay, then or silkworm. Okay, so when the egg hatches, right, the next stage is called larva stage, where the organism, right, जो animal है उसके अंदर, जिसको उसको बोलते हैं caterpillar, और you can say silkworm, right? Now silkworm, what does it do? ये क्या करते हैं, ये खाएगी, एकदम मस्त मजे से खाना खाएगी. What does they eat? They eat leaves of the plant, and that also mulberry leaves खाएंगे. मतलब मलबरी एक प्लांट है, उनके ही लीव्स खाएंगे लोग, राइट? एंड व्हेन इट स्टार्ट्स ईटिंग, ठीक है, सो व्हाट इट विल डू, दिस कैटरपिलर और सिल्कवर्म, व्हेन दे विल स्टार्ट ईटिंग दोज लीव्स, तो क्या करेंगे, दे विल वीव द नेट बनाएगी, जिसके कारण वो उनका होल्ड पकड़ कर लीव्स के ऊपर. वंस दे विल ईट, एकदम अच्छे से खाएंगे, एंड दे विल ग्रो इन साइज. ओके, व्हेन दे विल ग्रो इन साइज, एंड at that time, what along with that they will start weaving the net बनाना शुरू कर देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, वो उनको होल्ड करके रखेंगे, राइट? when it will start holding them, right, at that time, once it has done, उसकी साइज अच्छे से ग्रो हो गई है, प्रॉपर साइज का हो गया है, then after, okay, it will enter into a stage called pupa stage. अब प्यूपा स्टेज में क्या होता है, तो प्यूपा स्टेज में वो रेस्टिंग पीरियड में जाएगा. कहाँ जाएगा वो? रेस्टिंग पीरियड. मीन्स व्हाट विल डू, वो प्यूपा स्टेज में उसने खाना खा लिया, साइज ग्रो गई. नाउ व्हाट इट विल हैपन, इट विल टर्न इज हेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर 8. देखो साइड वाइज 8 हो रहा है ना, ऐसे
ऐसे करके क्या होगा, वो टर्न करेगा एंड विल स्टार्ट सिक्रेटिंग फाइबर, सिक्रेट्स फाइबर, it will secrete fiber, okay, which is made up of protein. वो किसकी होती है, which is made up of protein, right, okay. तो सीक्रेट करके फाइबर उसके आजू बाजू, मुंह के आजू बाजू, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी कवर हो जाएगी उससे, राइट, दैट फाइबर से. एंड दिस फाइबर व्हेन एक्सपोज्ड विथ एयर और सनलाइट, क्योंकि बाहर ही रहेगा, घर में तो रखेगा नहीं, तो बाहर एयर के अंदर इट विल स्टार्ट बिकमिंग ड्राई, और ड्राई होके क्या हो जाएगा, एकदम हार्ड बन जाएगा. तो कवरिंग विल बी फॉर्म्ड, राइट, इनसाइड विच व्हाट द सिल्कवर्म इन द प्यूपा स्टेज विल बी देयर, और वो कवरिंग हो जाएगा, राइट, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, हार्ड कवरिंग आ जाएगी, एंड अंदर क्या होगा, द सिल्क वर्म और प्यूपा स्टेज में जो सिल्क वर्म होता है दैट विल बी देयर. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आफ्टर व्हाट हैपन, इट विल कन्वर्ट इनटू सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे कन्वर्ट होगा, तो इट दिस विल डेवलप इनटू सिल्क मॉथ. कहाँ पर डेवलप होगा, जो हार्ड शेल जो बन गया है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ फाइबर, ठीक है, वो हार्ड शेल को क्या बोलते हैं, कुकुन्स. व्हाट वी कैन से, डेवलप्स इन कुकुन, राइट, इट विल डेवलप इन कुकुन्स. कुकुन्स करके उसने जो हार्ड शेल बनाया ना, कवरिंग, दैट इज कॉल्ड कुकुन. इनसाइड दैट द प्यूपा will develop into silk moth. Once it develops into silk moth means when it will start developing its wings, ठीक है, वो adult stage में आ जाएगा. ओके, तो क्या हो जाएगा, it will break the cocoons and will fly away. fly हो जाएगा, fly away. When it will get mature, again a female moth will again lay egg and this cycle keeps on going, right. सो हमारा यहाँ क्या मिला हमको, तो हमको जो सिल्क मिलेगा, द सिल्क दैट विल बी ऑब्टेनिंग विल ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स, राइट. हाउ वी विल ऑब्टेन दैट विल बी डिस्कसिंग इन फ्यू मिनट्स. ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सिल्क. व्हाट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सिल्क. वेराइटीज ऑफ सिल्क आर देयर, राइट. ओके, क्यों, क्योंकि देर आर डिफरेंट सिल्क मॉथ. अलग अलग सिल्क मॉथ होती है, उनका कलर भी अलग होता है. दे फीड ऑन डिफरेंट व्हाट से लीव्स, राइट. एंड देर, और जो भी हर एक जो डिफरेंट सिल्क मॉथ होती है, राइट, दे प्रोड्यूस डिफरेंट क्वालिटी ऑफ और डिफरेंट टेक्सचर ऑफ सिल्क, राइट. कलर में वेरिएशन होता है, राइट. देयर इज अ वेरिएशन इन स्मूथनेस, शाइनी, ये सब में डिफरेंट silkworm will produce different varieties of silk. Okay, few of the silk that are common are tassar. Okay, varieties are tassar silk, kosa silk, right, and one more silk that is moga silk. These are common silk that we generally use. Mulberry silk moth, right, is the most common silk moth. और उसमें जो सिल्क होता है that is most common और widely used. क्यों, क्योंकि इनका जो सिल्क मिलेगा, ओके, that is very lustrous, ठीक है, एकदम शाइनी होगा, राइट है. It will be very smooth and at the same time it can be dyed. मतलब उसको कलर दे सकते हैं, different colors very easily we can give. So that is why we generally use the silk which is obtained from the mulberry silk moth, right. So here that is what we have seen the life history of the silkworm, right. Okay, now there are in a market there are many practice has been done कि जहाँ पर silk साड़ीज जो होती है, like your mother your grandmother must be having, ठीक है, उनके पास अच्छे से एक दो तो मिनिमम होगी सिल्क साड़ी. and these sarees are very costly. बट मार्केट में ऐसी प्रैक्टिस होती है कि क्या है, वी माइट नॉट बी नोइंग कि वेदर ये सिल्क है वो प्रॉपर एकदम प्योर है कि नहीं है या डुप्लीकेट है. ओके, सो वन ऑफ द वे टू आइडेंटिफाई वेदर द सिल्क फाइबर is pure or not
whether it is natural or artificial. So burn that fiber. अगर वो फाइबर को जला देते हो, right? And if on burning the smell, it smells like a hair. ठीक है, burning hair जब जलता है उस तरह का जलेगा, then we can say it is a pure fiber, or you can say a pure silk fiber is there. और अगर on burning if it burns like a paper, ठीक है, पेपर कैसे जलता है वैसे जलेगा, उसकी स्मेल, पेपर की स्मेल आएगी, मीन्स इट इज अ आर्टिफिशियल सिल्क, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, राइट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डू वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम कोकून्स, क्योंकि कोकून्स के अंदर क्या है, सिल्क फाइबर है. अब कोकून्स में से सिल्क कैसे ऑब्टेन करना है, दैट इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ डू वी ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम कोकून्स, राइट? सो एज वी नो दैट फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम, राइट? एक टाइम पे कितने एग्स ले करती है? हंड्रेड्स ऑफ एग इट लेज एट अ टाइम, राइट? सो क्या करते हैं वो एग्स लेकर, उनको क्या एक प्रॉपर पेपर और यू कैन से क्लोथ के दे रैप इट एंड इज सोल्ड टू अ सिल्क फार्मर. सिल्क फार्मर्स मतलब वो फार्मर्स जो क्या करेंगे, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए दे विल रियर द सिल्क वॉर्म, राइट? सो व्हाट दे विल डू, फीमेल फार्म जो फार्मर्स है, सिल्क फार्मर्स, राइट? सिल्क फार्मर्स विल गेट द, और मार्केट में से क्या करेंगे, एग्स जो है वो जो खरीद के लेके आएंगे, एंड दे विल व्हाट दे विल डू, तो दे विल कीप द एग इन hygienic condition, right? At proper temperature and humidity, right? After that what, the eggs are warm. eggs को क्या करेंगे, eggs are warm करेंगे तो क्या होगा, it will hatch into larva, राइट? लार्वा स्टेज पे जो एग्स हैच हो जाएंगे तो सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर विल कम आउट, राइट? और वो क्या करेगा, इट विल ईट मलबरी लीव्स, जो हमने आगे देखा, राइट? मलबरी लीव्स को दे विल ईट मलबरी लीव्स. और मलबरी लीव्स भी कैसे कौन से खाएगा, जो फ्रेशली ग्रोन है, राइट? जो लीव्स फ्रेशली बने हुए पेड़ पे ग्रो हुए वो मलबरी लीव्स को खाएंगे. And they will start eating and enormously they will grow in size, right? And finally what, pupa stage में enter हो जाएगा. Once it enters into the pupa stage, what will happen? हमने आगे देखा कि it will spun the fiber, secrete करेगा फाइबर को, and will cover its body with the fiber, and on that fiber on exposure to the air will get hardened और cocoons में कवर हो जाएगी उनकी बॉडी, राइट? देयर बॉडी विल गेट कवर्ड इनटू द cocoons. फिर क्या देखा हमने, आफ्टर दैट व्हाट, द फ्लाई, द कैटरपिलर और जो सिल्क मॉथ है, सिल्क वॉर्म है, दैट विल डेवलप, मैच्योर हो जाएगी, राइट? आफ्टर 30-40 days दे विल ईट, आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट स्पिनिंग एंड सीक्रेट द फाइबर्स. फाइबर के बाद क्या, रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे. आफ्टर दैट दे विल ब्रेक द कोकून्स एंड फ्लाई अवे. तो जो कोकून्स हो दैट विल बी कलेक्टेड. ओके, तो क्या करेंगे हम, एग्स ले करें, राइट? लार्वा स्टेज आएगा. लार्वा स्टेज में क्या होगा, लार्वा स्टेज में कैटरपिलर्स एंड सिल्क वॉर्म विल बी देयर. आफ्टर दैट दे विल grow in size where they will enter into pupa stage. pupa stage से क्या होगा, they will start secreting the fiber, right? And will get surrounded by a fiber. और वो फाइबर कैसे होगी, हार्ड हो जाएगी एंड
will develop into a silk moth. सिल्क मॉथ में वो डेवलप हो जाएगा एंड कपून्स विल बी लेफ्ट ओवर देयर. कपून्स क्या हो जाएंगे, वहीं टुकड़े गिरे हो जाएंगे कपून्स के. सो दोज कपून्स आफ्टर दैट दे आर एक्सपोज्ड. सो व्हेन वी ऑब्टेन cocoons from here, these cocoons what they we are doing, उनको क्या करेंगे फार्मर्स. तो फार्मर्स will keep them under sun or what they will do, they will expose them to स्टीम को एक्सपोज करेंगे या फिर क्या करें सन में वो लोग उनको क्या करेंगे ड्राई करेंगे, राइट. वेयर व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट getting separate. What will start, the silk fiber will get separate out, right. The silk fiber will separate out. Okay, यहाँ पर क्या हो जाएगा, silk fiber will separate, right. cocoons में से fibers लेना है, that process is called reeling of silk. Reeling of silk. What is reeling of silk? Means the process of taking out the thread or fibers from the cocoons, बराबर, for the use of silk. use of silk के लिए क्या करना है, cocoons में से silk fiber we are getting, that process is called reeling. Once what we get the silk fiber, हमको silk fiber मिल गई. silk fiber are spun into silk yarn or you can say thread, and these thread are then made converted into silk fabric. silk fabric बनाएंगे, right, and silk fabric which they will get, and what after that, what after weaving, मतलब यहाँ से क्या होगा, फैब्रिक कैसे बनाते हैं, वीविंग प्रोसेस से, राइट, वीविंग एंड नीडिंग प्रोसेस. तो जनरली सिल्क में वीविंग प्रोसेस से क्या हो जाता है, द सिल्क फैब्रिक हैज बीन prepared by the weavers, right. So this was how do we obtain silk from the silk worm or silk moth, right. I hope you have understood very clearly from how do we obtain silk, right. So here we complete our chapter. In case of any doubts, we'll discuss it in the live lectures. So thank you class.